بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. This is Abdul Malik Hashmi and you are watching my YouTube channel. For more videos, please subscribe my YouTube channel and leave your comments below. आज इस वीडियो में हम अरबी ज़ुबान से मुतल्लिक एक बहुत अहम मसले का तज्ज़िया करेंगे और इसका हल तलाश करेंगे। Can Arab speak Arabic? क्या अरब अरबी बोल सकते हैं? هل العرب يستطيع أن يتكلم العربية؟ ये कितना अजीब सवाल है। क्या अरब लोग अरबी बोल सकते हैं? हकीकत यह है कि अरब अरबी नहीं बोल सकते। अरब जो ज़ुबान घरों में बोलते हैं वो अरबी नहीं है। وين رايحة؟ بروح هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ها وش فيك تأخرت؟ وينك ما فيه؟ تاخرت ولا يحزنون، انا كنت عند جارنا الجديد اسولف انا وياه. اوه إيه؟ صار عندنا جار جديد؟ شرى البيت ما شاء الله عليه واسمه ابو نوره. كويس ابو نورة. إيه؟ خلاص أجل بعد العصر بروح أزور أم نورة. يتكلم الواحد يكون من قصيدة بدكم تكسروا اصحاب فوق راسي. لا اعوذ بالله ما بنعملها ابدا، بنعمل اكثر من هيك، بس هي بالذات ما يا بنساويها. لطيف عليك. يا سيدي انت قولوا بنشوف، مو كاتب قصيده بتمجد مجموعتنا. اي والله. فشو ما قلت وشو ما حكيت رح ننبسط صدقني. وعد. حاجتكم حكي واتركوا اخي حبيبي يقول هالكلمتين. يلا سيدي خلص. بدخيل عيني. مطرح ما يسر يمري. خدي كمان دي. يلا هم يا جمل هم. ربنا يخليك ويديك الصحة ويقويك ويرزقك برزقنا. بس اللي صعب. بس جمت ولا بشغل بلشت فيه. يعني مزبوط كلامك صح، بس يعني انا كمان في عندي اسباب. لانه لما بتبلش بشغل وبتلاقي مديرك عم يتعامل معك بطريقه فيها قله احترام، وبعد شوي بصير يطلب منك طلبات ما لها علاقه بكل شغلك، اكيد ما رح انسجن، وانت بتعرف كثير منيح انه كرامتي فوق كل شيء. طيب अरब जो ज़ुबान बाज़ारों में बोलते हैं वो भी अरबी नहीं है। وبعد الإطار أنت بتفنش الشغل كله نفسه. يلا افطروا صباح الخير. يا رياض واقف ساكت ليه ما تاكل؟ بألف هنا الشيخ يا معلم عمر خيرك سامع. يا راجل مد ايدك كل. ربنا يكرمك ويطعمك يا رب. لا فتوحي تعالى. بالراحة بالراحة مفتوح لحظة تصور بالراحة. يا راجل سيبه يعني ما في منتج شو ما كان إلا عم يعلن، لأنه بلا إعلان ما يمشي حاله. يعني علكة محارم شو ما كان عم تشوف برمضان مليان إعلانات، عم يرعوا برامج كبيرة، يعني عم يرعوهم مثل العادة. عنا هي هتلاحق على ايه ولا ايه؟ هي مالها محامي؟ الولد حمدي مجننها، والواد كيفه شغل السوق. يا اختي هو كمان ولد هلفان، ومفيش بقى يا اختي غير السوق هو اللي هيربيه ويعلمه. الفلفل يا فلفل. यहाँ तक कि अरब जो ज़ुबान स्कूलों में बच्चों के साथ बोलते हैं वो भी अरबी नहीं है। أنا أبلة ليلى. أنا ما أحب الحركات وما أحب الدلع، لأن أعرف سوالفكم عدل، يعني ممكن أعكم في الماي وأطلعكم ناشفين، يعني اللي تبغي تستهبل لا تستهبل راسي. بلدنا وطننا تمام. ليش نحب وطننا وبلدنا؟ لأنه بيه بيوتنا وعوائلنا وأهلنا. صح لا مو صح؟ قبل ما بدنا نعمل اي شيء عن الكتاب بدل على الوقت ايش بدل على الوقت؟ سنة. أي بدل على الزمن. طب اجلسي انس مكانك. بس احنا في قال نعم مثل ايش؟ طب انا احكي لكم وانتم اكتب لكم جمله واشوف مين البطل بده يعرفها. على كل الاحوال هلا اللي بتسمع اسمها بتنزل على المخزن مشان تستلم الكتب، ولا الكم قوم انزلوا تنتين بيكون احسن، بس ما بدي ضجه بالمدرسه الله يرضى. यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर असातिज़ा फुसहा अरबी छोड़कर आमिया बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे गैर मुल्की तलबा को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। تدليك الأجسام. معنى الأخفاء كانت رجله شادة شوي
فقال اجل فرصه ما دامت هذا بروفيسور ومشهور ومعروف خلنا ندخل عنده. دخلنا عنده رجل عمره 60 65 سنه. يوم انسدح اخوي فهد عشان يسوي له ويبدا التدريك. طبعا غرفته فيها اشياء وفيها تحف وفيها مناظر، فانا قعدت اناظر وهو قاعد يسوي مساج لاخوي فهد. انتبه اي مساج زي كذا. تصور يا اخوان. इसी तरह बाज़ मसाजिद के आइम्मा और खुतबा अपने दीनी दुरूस में आमिया का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ तो पूरा लेक्चर ही आमिया में देते हैं. نسيه ورجع مين لإيه؟ ليه؟ لأنه هو خاف للضر ده اللي اترفع عنه يقربه من الاستدعاء. तो फिर वो कौन सी जुबान बोलते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. हालांकि दुनिया में 19 अरब ममालिक हैं जहाँ अरबी सरकारी ज़ुबान है. असल वजह यह है कि वो अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा की बजाय अल-आमिया यानी अपना इलाक़ाई लहजा या खलोकियल अरबिक बोलते हैं. सवाल ये है, क्या ये अरबी लहजात जो आज मुख्तलिफ अरब ममालिक में बोले जाते हैं, क्या ये अरबी नहीं है? ये अरबी ज़रूर है, मगर अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा की इंतहाई बिगड़ी हुई शक्ल है. ये अपने अल्फाज और तराकीब में कुरान की अरबी से इतनी मुख्तलिफ हो चुके हैं कि इनका समझना जो शीर लाने के मुतरादिफ है. इस पर मुस्तज़ाद ये कि ये लहजात एक दूसरे से भी बहुत मुख्तलिफ है. एक मिस्री शख्स मराकश के लहजे को नहीं समझ सकता और एक अलजायरी यमनी लहजे को नहीं समझ सकता. यह अलग बात है कि मिस्री लहजा इसलिए ज़्यादा समझा जाता है कि मिस्री फिल्में और गाने अरब दुनिया में ऐसे ही मशहूर हैं जैसे पाकिस्तान में भारतीय फिल्में. हालांकि मिस्री अरबी अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा से बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है. आज मिस्री अवाम अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा को समझने से कासिर है. अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 1439 सालों से अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा और अरबी लहजात के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क, एक बहुत बड़ी खलीज हाइल हो गई है कि लहजात मुस्तकिल और अलग ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर गए हैं. अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा और अरबिक डायलेक्ट्स में 80-20 का डिफरेंस आ गया है. यानी ये लहजात असल में अरबी से तकरीबन 80% मुख्तलिफ हो चुके हैं. अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा और आमिया के बढ़ते हुए इस फ़र्क को इस मिसाल से भी समझा जा सकता है. जब एक 6 साल बच्चा अपनी किताब में ये जुमला पढ़ता है, इस्तयक़ज़त अल-फ़तातु व जलसत क़ुर्ब अन-नाफ़िज़ति, जिसका मतलब है कि लड़की जागी और खिड़की के पास बैठी. The girl woke up and sat near the window. लेकिन इस बच्चे को इस जुमले के मानी समझ नहीं आते. इस जुमले में तमाम अल्फाज बच्चे के लिए नए हैं क्योंकि वह आमिया में अपने इलाक़ाई लहजे में या अपनी मादरी ज़ुबान में इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता. वो इस्तयक़ज़त से नावाकिफ़ है, वो अल-फ़तात से नावाकिफ़ है, वो जलसत से नावाकिफ़ है, वो नाफिदा से नावाकिफ़ है. इस बात को माहिर लिसानियात डॉक्टर अब्दुल्ला अद-दन्नान ने कुछ इस अंदाज में बयान किया. دخل ابن 6 سنوات إلى المدرسة وبدأ يقرأ. بعد 3 أشهر يستطيع أن يقرأ عبارة كالعبارة التالية: استيقظت الفتاة وجلست قرب النافذة. أقول له المعلمة طبعا باللهجة العامية: شو يعني استيقظت الفتاة وجلست قرب النافذة؟ ولا طفل يعرف ما معنى استيقظت الفتاة وجلست. البنت وجلست يمشوا الشرشب وقعدت يم الدريشة أو قعدت يم الطاقة. عنا بيقولوا قعدت جنب الشباك. قعدت حتى مو قعدت جنب الشباك. وهيك स्कूल के यही तलबा जब आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, वहाँ भी फ़ुस्हा अरबी न तो तदरीस की ज़ुबान के तौर पर बोली जाती है और न अरबी फ़ैकल्टीज़ यानी कुल्लियात में
फुसहा अरबी को पढ़ाया जाता है और न इसका जायज़ा यानी इम्तहान लिया जाता है। अरब जामियात की इस गिरती हुई सूरत हाल पर तबसरा करते हुए माहिर लिसानियात डॉक्टर अब्दुल्ला अद-दन्नान कहते हैं कि पूरी अरब दुनिया में कोई ऐसी अरब यूनिवर्सिटी नहीं पाई जाती जहाँ अरब तलबा के लिए फुसहा अरबी के बोलचाल के कोर्सेज कराए जाते हों। هذا إنتاجنا، هذه جامعاتنا. لا توجد جامعة عربية على الإطلاق تعتني بمهارة المحادثة باللغة العربية الفصحى. और बोलचाल का इम्तहान असेसमेंट लिया जाता हो। لا تعطي مقررا عنوانه محادثة باللغة العربية الفصحى، ولا تطلب من أي طالب أن يتحدث بالفصحى حتى ولو كان منتسبا إلى قسم اللغة العربية. यहाँ हम आपको अरब दुनिया की 2 जामियात के तलबा की इंतहाई नागुफ्ता बेसूरत हाल का मुशाहिदा करवाने जा रहे हैं। पहली यूनिवर्सिटी शाम की जामियात तिशरीन है और दूसरी यूनिवर्सिटी इराक़ की जामियात करबला है। अरब दुनिया की दीगर यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हाल है। يعني بدي أحكي معك كيف بالفصحى العربية. صباح الخير. حدثيني عن قسم اللغة العربية. قسم صعب كتير والله. صعب أحكي بالفصحى والله. كيف تقضي أوقاتك مع الأصدقاء في الجامعة؟ نذهب إلى حضور نشرح تسليمتي. نقضي معظم الأوقات في المحاضرات، والمعظم الأكثر. حدثني عن أصدقائك بالفصحى. بحبهم كتير. أيوة بدي أحكي لك عن الغراقي. الأصدقاء غير شكل كيف تضبط. الأصدقاء غير شكلين. اليوم في جامعة كربلاء التقينا ببعض الطلاب وسألناهم وطلبنا منهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى. طبعا ما أطول عليكم، هم يعني دمروا اللغة العربية ما بقوا بها. تلقان العميد قاعد جاء برا خالد جعفر. خلف الله علبتي قاعدة قدامي. يعني لو ما هي كانت برشلونة. الامتحان؟ برشمت. لا أكيد لقد برشمته. فذبينا المالات. بعد أكلنا لفات القص وبعض الكابتشينو. الفضاء عادي. كابتشينو. فلما انتهت المحاضرة الثانية دمرت اللغة طبعا انت. درجتك كم اليوم بالامتحان؟ 0 و0. والله أخذتني النومة. النومة. بس أوجه 8:30. بالفصحى. الساعة 8:30. قصة أريدك تحكي لي إيش سويت من قعدت من النوم لحد الآن، إيش سويت بالفصحى؟ عندما قعدت من النوم. قعدتوا؟ أنا هاي لغة عربية الفصحى. ها؟ صليت بالعربي وتريقت وجيت. لا اللغة العربية الفصحى. بالفصحى يعني. ها؟ زحفت شوية. زحفتوا؟ إيه. ليش؟ هاي زحفته استمرارية. عربي اللي زحفتوا؟ فعل مضارع. من على اليمن. جلست من النوم. شنو هاي؟ ايه شنو؟ सबसे बड़ा मसला ये है कि अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा तमाम अरब ममालिक में रोज़मर्रा की ज़ुबान के तौर पर अब बोली नहीं जाती। हाँ, ये ज़रूर है कि अखबारात और निसाब की किताबों में पढ़ी ज़रूर जाती, लेकिन अलमिया ये है गली मोहल्लों बाज़ारों में न लोग इस ज़ुबान को बोलते हैं और ना समझते हैं। इसकी कुछ झलक हम आपको यहाँ दिखाते हैं। एक टीवी एंकर लोगों से फसी अरबी में सवाल करता है तो इन्हें इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। ये लोग अजमी नहीं हैं बल्कि ये अरब हैं, लेकिन नाम के अरब जो अपने रसूल की ज़ुबान और कुरान की ज़ुबान से नाबलद है।
ये इंतहाई अफसोस का मकाम है और लम्हा फिक्रिया भी। انجحوا حلوه دي قوم نتعاون مع بعض في الامتحان एंकर पर्सन इस शख्स से पूछता है आपके पास लाइटर है? फसी अरबी में लाइटर को कद्दाहा कहते हैं और आमिया में कद्दाहा के लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए ये शख्स कद्दाहा से नावाकिफ़ है। مع قداحة مع قداحة قداحة معرفوش والله ये शख्स हैरत से पूछता है आप कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं? بتتكلم ايه؟ لغة ايه؟ أتحدث اللغة العربية بس 300 300 عتبة أين توجد هذه العتبة؟ بص في الوش كده تكسر टीवी एंकर फसी अरबी में इस शख्स से पूछता है कि मैं जूते खरीदना चाहता हूँ के लिए फसी अरबी में हिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये शख्स हिदा से नावाकिफ़ है, ये अरब है, लेकिन क्योंकि हिदा का इस्तेमाल आमिया में नहीं किया जाता इसलिए ये इससे नावाकिफ़ है। ये शख्स समझता है कि एंकर पर्सन बहुत आला ज़ुबान में कुरान की ज़ुबान में बात कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं माशा अल्लाह आप बहुत आला फसी ज़ुबान बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं आती। أريد أن أشتري حذاء. حذاء يعني ايه؟ ألا تعلم حذاء حذاء ما اعرفش والله حذاء ما اعرفش والله حذاء حذاء خياط ألاقي ماذا تقصد بألاقي؟ يعني هتلاقي مثلا الجزم وهتلاقي كل اللي انت عايزه بلوفرات وجواكت لو انت عايز بلوف بلوفرات وجواكت لو انت عايز. نخرج بقى ونشوف الدنيا بعد كده ننزل. اروح اقتدي حاجات من السوق. يا فندم؟ اجيب حاجات من السوق استقطع حاجات من السوق. لا باللغة العربية الفصحى. امال دي باللغة الايه؟ يعني باللغة الصحاب انت فاهم؟ इसके बरक्स अक्सर जामियात में गैर अरब तलबा के लिए अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा के बोल चाल के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जिसे तालीम लुग़त अल-अरबिय्या लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा कहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि गैर अरब तलबा फर अल-अरबिय्यतुल फ़ुस्हा बोलने लग जाते हैं। بدينا أن ندرس القراءة الموسعة والنحو أيضا والنصوص. كنت أتعلم العربية ولكن ما استطعت أن أعبر. كنت أدرس في المساجد في الصين. الآن الحمد لله أنا أفهم القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتقن 3 لغات. واجهت عدة صعوبة في تعليمي في اللغة العربية. और जब उनका सामना उसी जामिया या यूनिवर्सिटी के अरब तलबा से होता है जो फुसहा अरबी बमुश्किल ही बोल पाते हैं, तो एक तेजान की कैफियत पैदा होती है। इसकी वजह यह है कि इन अरब तलबा को अरबी इस जदीद तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ाई गई जिस तरह गैर अरब तलबा को पढ़ाई जाती है। इन अरब तलबा को उनके स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में इन अरब तलबा को अरबी ज़ुबान बतौर ज़ुबान नहीं बल्कि मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है और असातिज़ा मुश्किल इबारात का उनके लिए आमिया में तर्जुमा कर देते हैं। ये है असल मसले की जड़ कि अरबी स्कूल्स और कॉलेजेस में अरबी बतौर ज़ुबान नहीं पढ़ाई जाती बल्कि बतौर मजमून पढ़ाई जाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि तलबा इम्तहानात के बाद इस मुसल्लत करदा ज़ुबान से शदीद नफ़रत का इजहार करते हैं, बल्कि हर उस मजमून से नफ़रत का इजहार करते हैं जो इस ना समझ आने वाली ज़ुबान में पढ़ाया जाता है। नफ़रत के इजहार के तौर पर किताबों को बुरी तरह फाड़ा जाता है। कुछ मनाजिर आप यहाँ देख सकते हैं। ثالث وأول وثاني متوسط شو تسووا في أسماء الله. انتشر مقطع طلاب للمرحلة الابتدائية وهم يمزقون الكتب في الشارع. هذه ابتدائية أبو بكر الرازي في تبوك. एक शामी माहिर लिसानियात डॉक्टर अब्दुल्ला दन्नान अपने तजर्बे को बयान करते हुए कहते हैं कि ماذا يفعل الطلاب والطالبات بالكتب؟
عندما يخرجون من الامتحانات. ها يشهد الله يا إخوتي الكرام، أنا رأيت هذا المنظر في بلد اسمها الريصاني في المغرب. ألقيت محاضرة عندهم هناك في صحراء المغرب اسمها الريصاني. قلت لهم ماذا يفعل الطلاب؟ عملوا هيك كده نفس المشهد يمزقون الكتب، ينتقمون من الكتب. जब मराकश के एक दूर अफ्तादा इलाके और रईसानी में उन्होंने ये मंजर देखा कि तलबा इम्तहानात से फरागत के बाद किताबों को बुरी तरह पढ़ते हैं, गोया कि वो इन मुसल्लत करदा किताबों से जो उन्हें समझ नहीं आती से इंतकाम ले रहे हों। يرمونها من نوافذ الحافلات أو هذه بالنسبة للبنات. उन्होंने देखा कि लड़कियां बसों की खिड़कियों से किताबों को फाड़ फाड़ कर उछाल कर फेंक रही थीं। أما بالنسبة للشباب يلعبون به الكرة. और लड़के उन्होंने किताबों को फुटबॉल बनाकर वो उससे खेल रहे थे। وفي دمشق بعض الأحياء ابتدعوا فكرة جديدة، وهي أن يجمعوا الكتب كلها في كومة على شكل هرم، وأن يدسوا فيها فتاش هذا الذي يستعمله الأطفال في الأعياد ويشعلوه. और दिमश्क में एक और नया तरीका तलबा ने ईजाद किया है, वो कदर मुख्तलिफ है। वो किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर बना देते, एक पहाड़ी बना देते और उसके अंदर पटाखे फुलझड़ियाँ जला के छोड़ देते और किताबें फिर धमाके से فيبدأ تتطاير الكتب إلى الأعلى. वो आसमान में उछलती हैं और वो जलती हैं, जल जल कर नीचे गिरती हैं। هذا وضعنا نحن. ये है हमारी सूरत हाल। هذا الذي تخرج حتى من الجامعة. यही हाल यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील तलबा का भी है। تريد أن يقرأ كتابا بعد ذلك لا يقرؤون. इम्तहानात के बाद कौन पढ़ता है? العرب أمة لا تقرأ يا जमाआ. अरब एक ऐसी उम्मत है जो पढ़ती नहीं है। अरबों की फसी अरबी न बोल सकने की इस गिरती हुई सूरत हाल का क्या हल है? इसका हल एक शामी माहिर लिसानियात डॉक्टर अब्दुल्ला दन्नान ने पेश किया। ينسون طبعا لأنها لا تتحدث معهم بالفصحى، هي تتحدث بالعامية كل الوقت. كل المعلمين في الأقطار العربية من الخليج إلى المحيط وفي جميع المدارس من الأول إلى الثاني عشر كلهم يتحدثون بالعامية مع الطلاب يا जमाआ. किया इब्तदान उन्होंने तजर्बे के तौर पर अपने नए मौलूद बच्चे बासिल पर इसका तजर्बा किया। उन्होंने बच्चे की माँ को कहा कि वो इसके साथ शामी आमिया में बात करे और वो खुद बासिल के साथ फुसा अरबी में बात करने लगे। इस तजर्बे को बाकायदा 1981 में कुवैत टीवी ने रिकॉर्ड किया। इस तजर्बे की कामयाबी के बाद 1988 में डॉक्टर अब्दुल्ला दन्नान ने कुवैत में दारुल हदाना यानी एक नर्सरी स्कूल कायम किया। इसके बाद रौदतुल अज़हार अल अरबिया के नाम से एक स्कूल दिमश्क में कायम किया गया। रौदतुल अज़हार अल अरबिया डॉक्टर अब्दुल्ला दन्नान के इस तजर्बे की एक झलक जो उन्होंने बासिल पर किया यहाँ नाजरीन के लिए पेश की जा रही है। इस वीडियो में डॉक्टर अब्दुल्ला दन्नान अपने बेटे बासिल से फुसा अरबी में बात कर रहे हैं और वो रवानी से जवाब दे रहा है। أنا أرميها مرة وأنت ترميها مرة، صح؟ تريد ذلك؟ حتى لا تقع. تضع يدك لماذا؟ حتى لا تقع. ما هو الذي سيقع؟ الكرة. سأضع يدي. طيب على يدي. نزلت على يدك؟ والآن ضع يدك هنا. 2004 में रियाद सऊदी अरब में मरकज़ लित्तदरीब के ज़ेर निगरानी इस प्रोग्राम यानी अरबिक लैंग्वेज स्पीकिंग प्रोग्राम पर अमल किया गया। 2007 में अरबी बोलचाल के इस प्रोग्राम को सल्तनत अम्मान के तमाम मदारिस में नाफिज कर दिया गया। تبنت وزارة التربية في سلطنة عمان نظرية الدكتور عبد الله الدنان في تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة. فجاء الوزير قال لهم ما هذا؟ قالوا له ما ترى؟ قالوا نطبق ذلك في كل مدارس عمان. लेकिन अब भी ज़रूरत इस सब्र की है कि ये प्रोग्राम तमाम अरब ममालिक में नाफिज किया जाए। इस प्रोग्राम पर अमल करने से अल-अरबिय्यतुल फुस्हा और आमिया में मौजूद खलीज को कम किया जा सकता है और अरब अपने
सकाफती विरसे से जुड़ सकते हैं। चूँकि अरब स्कूलों में तमाम मज़ामीन फुसहा अरबी में पढ़ाए जाते हैं, जब एक अरब बच्चा इस ज़ुबान को इसकी 4 महारतों के साथ सीखेगा तो इसे इस ज़ुबान से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर वो नफ़रत और इंतकाम के लिए साल के आखिर में किताबों को फाड़ेगा नहीं। यही तलबा जब माशरे में अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे तो वो मौजूदा अरब अवाम की तरह नहीं होंगे जो कुरान की अरबी से बिल्कुल नाबलद है। गोया उनमें और गैर अरब लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Subscribe my channel. Thank you for watching this video.